Good morning, students. As we have already started exercise 23D and we are doing the problems relating to rectangle. Till question number 4 we have already done yesterday. And today we will start with question number 5. In question number 5, it is given a path 2.5 meter wide is running around a rectangular grassy plot 40 meter by 35 meter. Now one grassy plot is given to you and dimension for this grassy plot is 40 meter by 35 meter और इसके बाहर आउटसाइड द ग्रासी प्लॉट वन पाथ इज गोइंग ऑन. ये पाथ है आपका. दिस पाथ इज देयर एंड द विड्थ ऑफ दिस पाथ इज 2.5 मीटर. ये पाथ है आपका. दिस वन इज पाथ एंड द विड्थ ऑफ दैट पाथ इज 2.5 मीटर फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स. ये 2.5 मीटर विड्थ पे है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड मनी नीड फॉर टिलिंग इट. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. We have to find the area of this part and how to what is the cost needed for tiling this path. ये पाथ पे आपने टाइल्स लगानी है तो वो टाइल्स लगाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी. सो वी हैव टू नो फर्स्ट द एरिया ऑफ पाथ. नाउ इफ वी नेम दिस ट्राइंगल ABCD. इन रेक्टेंगल ABCD length is given 40 meter, breadth is given 35 meter. But if we see the outer rectangle PQRS, in rectangle PQRS, what will be the length? अब outside length we have to find, we have to add 2.5 two times. Width जो आपको given है 2.5, we have to add it 2 times in length and its breadth. So it will become 40 plus 2.5 plus 2.5, that is 45 meter. And breadth will be equals to 35 plus 2.5 plus 2.5, that is 40 meter. Now area of path. एरिया ऑफ पाथ कौन सा है? शेडेड पोर्शन. तो ये एरिया ऑफ पाथ आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. Outer rectangle minus inner rectangle, you will get this shaded portion which is a path. So area of rectangle PQRS, length into breadth. Formula क्या होता है इसका? Length into breadth. So you will take 40 into 35 meter. Sorry for this. PQRS की length आपकी क्या है? 45 into 40 meter square. Minus ABCD rectangle की length और breadth क्या है? 40 into 35 meter square. Now you will multiply it. 45 into 40, you will get 1800 meters square minus 40 into 35, that is 1400 meter square. So what is the area of path? Minus करके क्या आया आपका? 400 meter square. Now rate of tiling, it is given rupees 115.60 per meter square, and we have to find cost of tiling the path, that is equals to क्या था फॉर्मूला आपका कॉस्ट का? रेट इंटू एरिया. सो रुपीज़ 115.60 मल्टीप्लाई बाय एरिया, that is 400 meter square. So we will multiply 400 with 115.60. You will get rupees 46,240 rupees cost of the tiling the path. Similar, it is a question similar we have done in question 1, 2, 3, 4. बिल्कुल सेम है आपका ये क्वेश्चन. So like this you have to do this. In question number 6, it is given a rectangular lawn 115 meter long and 64 meter broad. Now there is one rectangular lawn ABCD in the shape of rectangle whose length is given 115 meter and breadth is given 64 meter. Has two cross path at right angles. दो क्रॉस पाथ हैं, ऐसे आपके ये क्रॉस पाथ बनाया हुआ है उन्होंने.
और वो आपके स्ट्रेट है, राइट एंगल में है. 1 2 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू इट्स लेंथ. एक आपका यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन गिवन है दिस पाथ की, दैट इज गिवन 2 मीटर, क्योंकि ये पैरेलल किसके है, लेंथ के पैरेलल जो आपका पाथ बना है दैट इज 2 मीटर वाइड, एंड द 2.5 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू इट्स ब्रेथ. ये ब्रेथ है आपकी, और इसके पैरेलल जो आपका पाथ बना है उसकी डायमेंशन क्या है, 2.5 मीटर. 2.5 मीटर ये इसकी विड्थ है. We have to find the cost of graveling the path at 114 per meter square. Now आपका जो path है वो क्या आ गया, this is a path, ये वाला जो क्रॉस पाथ है ये आपको फाइंड करना है एरिया, then only we can find the cost of graveling the path. So how you will find it, जो आपके ये क्रॉस पाथ बने हैं, first of all you will name them. अगर मैंने ये पाथ को नेम दे दिया PQRS, जो आपके लेंथ के पैरेलल है, और जो पाथ ब्रेथ के पैरेलल है आई हैव गिवन द नेम एस, यू कैन टेक एनी नंबर, LMNO. सो वी हैव गिवन द नेम ऑफ द पाथ. जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ये भी तो आपके रेक्टेंगल्स बन रहे हैं जो पाथ आपने लिया है, तो आपने उनको नेम्स दे दिए. तो आपके कौन कौन सा एरिया आपने फाइंड करना है पाथ के लिए, वन इज PQRS, ये आपका पाथ है. दूसरा पाथ कौन सा आ गया, LMNO. सेकेंड पाथ ये हो गया. दोनों पाथ्स को ऐड करोगे, पर ये जो कॉमन पार्ट है जिसको नाम दे दो IJKL, दिस इज अ कॉमन पाथ. इसको आपने इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. इसका जो एरिया, मिडल पार्ट का जो ये एरिया, दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, देन यू विल गेट द क्रॉस पाथ, graveling the path. So what you have to do, first to know the dimension. अगर आप ले रहे हो rectangle PQRS, now what will be the length? Length इसकी क्या होगी, क्योंकि पैरेलल है वो outer rectangle के, तो it means length will be 115. ये लेंथ जो आपकी होगी पैरेलल टू दिस, और इसकी जो ब्रेथ है दिस पार्ट, वो आपका कितना था, 2 मीटर. ये 2 मीटर था आपकी ब्रेथ, ये आपने 2 मीटर ली थी. सो ब्रेथ इज 2 मीटर. अगर आप रेक्टेंगल लेते हो LMNO, इसमें आपकी जो लेंथ है दैट इज 2.5 मीटर. ये कितनी विड्थ थी इसकी, 2.5, तो इतनी लेंथ हुई आपकी. एंड ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू, विड्थ वॉज 2.5 मीटर, सो इसकी जो इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी दैट विल बी 2.5 मीटर. एंड ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू, कितनी है ब्रेथ, क्योंकि इसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो दैट विल बी 64 मीटर. नाउ जो मिडल पार्ट जो आपका कॉमन है रेक्टेंगल IJKL, उसकी लेंथ कितनी होगी, दिस इज लेंथ दैट इज 2.5 मीटर, एंड ब्रेथ विल बी, दिस वन इज ब्रेथ, तो इसके पैरेलल है दैट इज 2 मीटर. So we have to find the area of these 3 rectangles so that we can get the area of path. तो area of path कैसे निकलेगा, area of rectangle PQRS plus area of rectangle LMNO minus area of rectangle IJKL. इन दोनों के एरियाज में आप ये वाला रेक्टेंगल का एरिया जो कॉमन पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका पाथ आ जाएगा. अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो पाथ में एक ऊंचाई सी, मतलब ऐसे एक ब्रेकर्स आ जाएगा, स्पीड ब्रेकर्स आ जाएगा, पर हमें पाथ चाहिए बिल्कुल प्लेन. सो जो कॉमन पार्ट है वी हैव टू कट दैट पार्ट, तब वो बिल्कुल स्मूथ आ जाएगा. नहीं तो अगर इधर से भी जाओगे तब भी वो एक स्पीड ब्रेकर सा बन जाएगा, इधर से जाओगे तब भी, क्योंकि दोनों तरफ से आपकी जो विड्थ है दे आर डिफरेंट. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS 115 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO 2.5 इंटू 64 मीटर स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल IJKL 2.5 इंटू 2 मीटर स्क्वायर. यू विल गेट द 3 एरियाज रेक्टेंगल के. मल्टीप्लाइड 115 into 2, you will get 230
meter square plus 2.5 into 64, you will get 160 meter square plus 2.5 into 2, you will get 5 meter square. अब इन सबको ऐड कर दो. When you will add it, what you will get? 5 plus 230 plus 160, that is equals to 395. Sorry, here we have to subtract it. हमने ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना था. So 230 plus 160, 230 plus 160 is 390 minus 5 meter square, that is equals to 285 meter square. So 390 minus 5, it will be 385. So आपने एरिया निकाल लिया, दोनों के एरियाज को ऐड करके 5 को सब्ट्रैक्ट किया एंड यू विल गेट 385 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ. नाउ रेट ऑफ graveling the path is given rupees 114 meter square. So cost of graveling the path will be equals to rupees 114 into 385 rate into area. तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ₹43890. एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके जरूर देखना रफ में. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल हैव टू डू लाइक दिस. तो जब भी आपके क्रॉस पाथ होंगे, अब आपके क्रॉस पाथ थे तो आपने दोनों एरियाज जो दो रेक्टेंगल्स बनते हैं उन दोनों के एरियाज को कॉमन एरिया सब्ट्रैक्ट करके पाथ का एरिया निकालेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The central hall of a school is 22 meter long and 15.5 meter wide. Now central hall is given in the shape of rectangle, 22 meter long and 15.5 meter wide, मतलब breadth होगी इसकी. A carpet is to be laid on the floor leaving a strip of 75 centimeter width from the walls uncovered. इसको 0.75 फोर साइडेड से आपने छोड़ के ये आपने कारपेट ले किया. दिस इज़ अ कारपेट. कितना गैप आपने छोड़ा है? 75 सेंटीमीटर. पर यहाँ पे आपका क्या है? मीटर. तो आप ये 75 सेंटीमीटर जो इसकी विड्थ है उसको आप 100 से डिवाइड करके यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर. विड्थ इज गिवन 75 सेंटीमीटर, so it will be 0.75 meter. We have to find the area of the carpet. Area of the carpet कौन सा हो गया? ये वाला. So हॉल का एरिया को नेम दे दो ABCD और कारपेट को नेम दे दो PQRS. So first we will find the area of the carpet. तो कारपेट है आपका. लेंथ ऑफ कारपेट कितनी होगी? अब लेंथ ऑफ कारपेट 22. अब कारपेट अंदर की तरफ है तो विड्थ को आप दो बारी क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट. 0.75 माइनस 0.75. सो इट विल बी इक्वल्स टू 22 में से आपने 1.5 माइनस करना है. यू विल गेट 20.5 मीटर. देन ब्रेथ ऑफ कारपेट विल बी इक्वल्स टू 15.5 minus 0.75 minus 0.75, that will be equals to 15.5 में से भी आप minus 1.5 कर दो, you will get 14 meter. तो therefore area of carpet आपका क्या हो जाएगा? Length into breadth. Length of carpet 20.5, breadth is 14 meters square. When you will multiply it, you will get the area of carpet, that is 287 meters square. Now we have to find the strip. अब ये strip कौन सी है? This is your strip, जो outer part है, जो आपकी width थी जो आपने छोड़ी है वो एक strip है, वो आप find करनी है. तो वो आप कैसे find करोगे? Area of strip equals to area of outer rectangle, that is ABCD, minus area of inner rectangle, that is PQRS. एरिया ऑफ हॉल में से एरिया ऑफ कारपेट माइनस कर दोगे, यू विल गेट द स्ट्रिप.
एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल 22 इंटू 15.5 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, अभी आपने फाइंड किया था कारपेट जो है आपका एरिया ऑफ पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, तो वो आपका कितना था 287 मीटर स्क्वायर. सो 22 इंटू 15.5 विल बी इक्वल्स टू 341 meter square minus 287 meter square. When you will subtract it, you will get the area of strip, that is 54 meter square. So like these questions, same pattern है. अंदर की तरफ का लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है, you will subtract it. बाहर की तरफ की जब लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करनी है, you will add it 2 times. और सिंपली आपने ये देखना फाइंड क्या करना है. इसमें आपने कारपेट फाइंड करना था, वो इंटरनल एरिया था. फिर आपने स्ट्रिप फाइंड करनी थी, वो आपने आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल माइनस करके ये वाली स्ट्रिप फाइंड करनी. लाइक दिस यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 इन योर नोटबुक एंड प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली. थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट यू विल प्रैक्टिस इज 1 and 2 टाइम, यू विल बी easy for you to do it. So for today, complete this. Thank you.